This call is now being recorded. गुड मॉर्निंग डियर बच्चों, कैसे हैं आप सभी घर पर। मुझे पूरी आशा है आप सभी अपने मम्मी पापा के संग सेफली घर पर रह रहे हैं, राइट। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपनी आज की क्लास पर चलते हैं बच्चों। अभी टाइम है आप सबको बैठना है और हमारे साथ पढ़ाई स्टार्ट करना है, राइट। So a very warm welcome to Kidzilal Ghati and Karon parents and children. Welcome to dear parents and my dear children. Hope you all are safe at home. Yes. So without time wasting, we are moving on our today's session, right? So settle down, dear children. Yes, very nice. So starting a very warm welcome to all Kidzi, Lalghati and Karon parents and my dear student. Now moving on the next slide. Yes, welcome all thought of the day. The time is always right to do what is right. Yes, again I am repeating. The time is always right to do what is right. Right? So today is date is 6th of July 2020. Yes, today is what? 6th of July. Yes. So dear student, my question is same. Yesterday was obviously 5th of July and tomorrow will be, yes, 7th of July. Yes, very good. So today's day is Monday. Today is what? Monday. Yes. So again repeating my question. Yesterday was Sunday. Yes. Full of fun and joy, right? Yes. Now tomorrow will be Tuesday. Very good. Sunday, Monday, Tuesday. Okay. So today is week 4, day 18th. Yes. Now moving on the next slide. Now let's start our day with a small prayer. Now put your right hand on your left chest. Come on. Get up. Stand up. Okay. Stand straight. Yes. Now please don't move here and there. Yes. And repeat the anthem before, after me. Right? So we are starting the anthem. You are within me. You are infinite. You are unique. My potential inside. You are the wings beneath my flight. You define me. My potential inside. Today I pledge with all my might, I shall achieve you, my potential inside. Yeah, that's great. Now moving on the next slide. Yeah. And now this is your CT time. What time? Concept time. और हम क्या लर्न कर रहे हैं इतने दिनों से? कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चों? Type of houses. What? Type of houses. So now I am damn sure आप सभी को 4 to 5 टाइप ऑफ हाउसेस की नेम लर्न हो गए होंगे, राइट? लाइक हट, हाउस, होटल, हॉस्पिटल, है ना, टेंट, इग्लू, फार्म हाउस, लाइट हाउस, कैस्टल हाउस. यस, ओके. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. डू अ क्विक recapitulations of the different type of houses taught in the previous session or classes. Building, bungalow, steel house, tent house, yes, bamboo house, straw house. हमने सब पढ़े थे. bamboo house में किसका यूज किया जाता है? yes, bamboo का, right. straw house में yes, लकड़ी का ही यूज किया जाता है. straw यानी घास वगैरह का यूज किया जाता है, राइट. इस तरीके से हमने सबके कैरेक्टर्स पढ़े थे. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. आज हम इसी के बारे में और न्यू इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है. सो देयर आर अ फ्यू मोर टाइप ऑफ हाउसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्लू. किसी ने देखा है? मैंने देखा है. यस, मैंने देखा है. एन इग्लू इज अ settler built of snow. It is found in places where it snows heavily, right? For example, in Canada and Atlantica. Okay?
It protects people from heavy snowfall. Yes, जहाँ भी ज्यादा स्नोफॉल होती है ना, जहाँ ज्यादा बर्फ गिरती है, वहां पर लोग इस प्रकार के हाउस बनाकर रहते हैं बच्चों। और इस प्रकार के हाउस बनाकर रहने से उन्हें थोड़ा सा वो प्रोटेक्ट हो पाते हैं स्नोफॉल से, राइट। वहां पर नॉर्मल टाइप के हाउसेस नहीं चलते, वहां पर इग्लू ही बनाए जाते हैं, ठीक है। कई लोग सोचते हैं इग्लू में जानवर रहते हैं, नो, देयर आर सो मेनी पीपल जो इग्लू में अपनी लाइफ को सेव करके रखते हैं, राइट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस इज हाउस बोट। यस, इन इंडिया वी कैन ऑल्सो सी दिस। हाउस बोट में क्या होता है, इट इज अ हाउस बोट इज अ लाइक ऑफ बोट ओनली, राइट। ये बोट टाइप का ही होता है। जैसे अपन लोग अपनी अगर लेक भी ऊपर जाएंगे, तो हम अगर लेक पर जाएंगे तो लेक पर पता है हमें क्या दिखेगा, बोट दिखती है ना। वो जो छोटी छोटी नाव होती है ना, बिल्कुल ये वैसी ही नाव होती है, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ी होती है एंड इसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज होती हैं जो कि किसी एक घर में होती हैं। लाइक इसमें वॉशरूम भी होता है, इसमें बेडरूम भी होता है, इसमें डाइनिंग एंड किचन भी होता है। तो ये सब लोग बोट पर डिजाइन करते हैं। सो इट्स अ हाउस बोट इज लाइक अ बोट बट इट हैज all the facility that of that of a house, like it floats on water। और ये कहीं साइड में नहीं रखी रहती, ये भी नॉर्मल नाव की तरह चलती रहती है पानी पर। यस, in India we can see houseboat in Kashmir and Kerala। Yes, in Kashmir and Kerala। Now आप अपने मम्मी पापा के संग जब भी जाएंगे तो हाउस बोट पे जरूर जाइएगा। मैंने कब देखा था, यस, व्हेन आई वाज इन केरला एंड आई एम मूविंग टू दार्जिलिंग, केरला टू दार्जिलिंग, राइट। सो जब हम जाते हैं तो वहां पर हाउस बोट ही एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि हम वहां से वहां तक मूव कर पाए। सो आई एंजॉयड वेरी मच। अगर आपको एंजॉय करना है तो प्लान बनाना अपने मम्मी पापा के संग, बट इस साल तो नहीं, राइट, नेक्स्ट ईयर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इट्स अ ट्री हाउस। वाओ, इस पे बहुत मजा आता है, पता है। यस, मैंने भी देखा है। कहाँ पर, ट्री हाउस आर यूजली फाउंड इन जंगल एंड आर मेड यूजिंग बैम्बो एंड वुड। यस, जहाँ बैम्बोस ट्री होते हैं ना, वहां की थोड़ी सी लकड़ी और वुड यानी लकड़ी को थोड़ा सा यूज करके, नॉर्मल वुड को यूज करके जंगलों में ऐसे टाइप के हाउस बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं पता है आपको? यस, क्योंकि नीचे बहुत सारे एनिमल रहते हैं, तो इन एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए क्या किया जाता है, इस तरीके के ट्री हाउस बनाए जाते हैं। और ये ट्री हाउस हमेशा ऊंचाई पर होंगे, किसी बड़े पिलर, मतलब इनको लकड़ी के पिलर गाड़ दिए जाते हैं नीचे जमीन में, और उनके ऊपर वुड और बैम्बो लकड़ी का यूज करके इस टाइप के हाउस बनाए जाते हैं। दे आर मेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स इन द जंगल। जंगल के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे नाइट से बचने के लिए, क्योंकि डे में तो फिर भी हम लोग सतर्क रहते हैं, आग रख सकते हैं अपने पास, बट नाइट में तो हमें नींद आ जाती है ना, तो हम ऊपर थोड़ी ऊंचाई में जाकर रहते हैं। बहुत मजा आता है इस टाइप के हाउसेस में। ट्री हाउसेस आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज। यस, ये हमेशा टॉप ऑफ द ट्री होते हैं, ठीक। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, गिव द वर्कशीट। SR, that is senior KG, D18, that is day 1-8, 18, CT, that is concept time, WS01, and SR D20, CT, WS01. To your child, dear parent, and instruct him or her to write their name on the worksheet. Right? Read the instructions aloud. उनके सामने जोर से बोलकर बताइए कि उन्हें करना क्या है, and if required, explain what has to be done। पहले उनको बोलिए, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दीजिए। अगर वो समझ पाते हैं तो वेल एंड गुड, दैट इज द टास्क जो हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, कि उनको खुद समझ में आनी चाहिए कि वर्कशीट में करना क्या है। अदरवाइज इफ नीडेड देन यू कैन हेल्प, राइट, असिस्ट इफ योर चाइल्ड finds it difficult to do the worksheet, but do not do it for him or her। Yes, you can help your child, but अगर आप खुद कर रहे हैं तो that is wrong, right? Or if you don't have the workbook with you, you can take the printout for the same,
और इसी में सॉल्व करा दीजिए. जब आपकी वर्कशीट आएगी then you can do it. Right? Now next slide please. Yeah. Match the houses to the places where they are found. Let's match the houses to the places where they are found. Like हाउस बोट कहाँ मिलता है, हाउ ट्री हाउस कहाँ मिलता है, ऑब्वियसली जंगल में. इग्लू कहाँ मिलता है, आइसी प्लेस पर, बहुत जहां पर आइस गिरती है. एंड हाउस बोट कहाँ मिलता है, जहां पर रिवर एंड लेक होती है. राइट. सो ये वर्कशीट आपको बच्चों को सॉल्व करानी है जो मेरे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग है. आई थिंक नाउ मैच द हाउसेस टू देयर नेम. आप पिक्चर देखकर उन्हें उनके नाम से रिकॉग्नाइज करना है कि क्या कहाँ लिखा है. लेट देम डू. उनको करने दीजिए, तभी उनकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी. राइट. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. होप यू एंड योर चाइल्ड have learned about the type of houses. This worksheet will help you to child to recognize and name some type of houses. Right? Participate actively in conversations while listening attentively. जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं उसके बाद उसको कन्वर्सेशन में लेते हैं तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है. So you have to very attentive. Yes. Now emerging student profile, lifelong learning, कॉन्फिडेंस एंड लॉजिकल. जब आपके बच्चे अब बाहर जाएंगे कहीं घूमने फिरने या फिर किसी और के साथ, तो वो खुद आंसर कर पाएंगे कि यहाँ पर क्यों इस तरीके के साधन चलते हैं. दैट इज वेरी इम्पैक्टफुल. राइट पेरेंट. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टाइम. सो दिस इज द लैंग्वेज टाइम. ये सो a transition activity is there. Yes, come on senior KG student. Now we are doing a transition activity. Okay. So now a physical movement is there. Now get up, stand up at your place. Yes, very good. Now roll your hands. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yes, very good. So this is the transition activity. Now we are moving on the next session. Yes, very good. Sit down at your places, settle down. Yes, language time. आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं? So today we are going to learn cursive letters. Right? So in the last class we have studied the running or cursive letter A and B, B. Right? Now we are moving on the, let's see a video to write cursive letter A and B. Click on the video to play. Dear parent, you can play it, but I skip it. Now next slide, class assessment. This is the class work of English to be done in the English notebook. If you have 3-in-1 notebook, you can do it. Right? So instruction should be like this. Teachers ने ये copy set की है. You have to set your child's copy. Right? Color your friend C. C says K as in cat, camel. Yes. So carrot. इस तरीके से आपको बच्चे को सेट करके देना है. डियर पेरेंट, इसमें जो आपको बिग वन सी दिख रहा है, राइट, और कर्सिव बिग वन सी दिख रहा है, क दिख रहा है, उसमें आपको बच्चे को क्रेयॉन देना है और उसको ट्रेस करने देना है. राइट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम. यस, देन दिस इज द प्रैक्टिस राइटिंग, राइट, क्लास वर्क. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. So this is the class assessment for English to be done in the English notebook or 3-in-1 book. So you have to design this sheet in your 3-in-1 copy and do it. Now home assessment of English to be done in the English notebook. Practice writing K and D. Right? You have to do it. Now worksheet number SR D18 LTWS01 and SR D19 LTWS01. ये आपको वर्कशीट बच्चे को कंडक्ट करानी है. यस, सो दिस इज द लैंग्वेज टाइम जो हमको कंडक्ट करना था आज की डेट में. यस, नाउ वी आर मूविंग इन द हिंदी टाइम. ओके, सो कम ऑन स्टूडेंट, देयर इज अ ट्रांजिशन एक्टिविटी. कम ऑन, गेट अप, गेट अप, गेट अप. ओके, सो इन द ट्रांजिशन एक्टिविटी वी हैव टू डन like fly like a bird. Come on, do it, this action word. Fly like a bird. Come on, wave your both hands. Yes. Yes. Come on, do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 times. Okay, get relaxed.
and sit down at your places. Right. So now we are moving in the Hindi time. Yes. पिछली कक्षा में हमने का वर्ग के 2 अक्षरों का अभ्यास किया था. राइट. क्या थे वो? आइए पुनः एक बार अभ्यास करते हैं. दैट इज ग. ग से गमला. ग. घा से घर. क्या बोलते हैं उसको? का वर्ग का जो आखिरी अक्षर है वो है यहाँ खाली. राइट. यहाँ खाली. डियर पेरेंट प्लीज नोट दैट इसको डा नहीं बोलेंगे. ना में नीचे बिंदु होता है, इसमें साइड में बिंदु है. राइट. यहाँ खाली. अब हम यहाँ खाली को लिखने का तरीका हिंदी की उत्तर पुस्तिका में इस तरीके से आपको बच्चे को सेट करके देना है एंड वो अपना क्लास वर्क और होमवर्क इस तरीके से करेंगे. अब यहाँ ध्यान दें कि हमने का वर्ग पूरा सीख लिया है. डियर पेरेंट मैं भी थोड़ी सी हिंदी में कच्ची थी इस मामले में, क्योंकि मुझे भी वर्णमाला भूल चुकी थी. अब मैं बच्चों को जब से पढ़ा रही हूँ तब से वर्णमाला थोड़ी सी याद हो पाई है. ठीक है. सो अब का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, स्वर के बाद व्यंजनों की पहला वर्ग होता है का वर्ग. सो हमने का वर्ग का अगर जब भी बात चलेगी का वर्ग के अक्षर लिखिए तो का वर्ग में कितने अक्षर आएंगे? 5. क, ख, ग, घ, यहाँ खाली. राइट. सो आपको ये बच्चे को कॉपी पे सेट करके देनी है और उसको लर्न कराना है. नाउ इंटरेस्टिंग टाइम इज देयर. मेरे बच्चों का फेवरेट टाइम. और फेवरेट है तो आज ट्रांजेक्शन एक्टिविटी में हम रब करेंगे अपने पाम्स को. यस कम ऑन रब इट रब इट रब इट. फास्ट 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 फास्ट. गर्म हो गए होंगे. राइट. सो अब इस गर्मी को वेस्ट नहीं करना है, इस एनर्जी को हमें सेव करना है. सो हम अपनी आईज पे रखेंगे. यस. एंड नाउ वी आर मूविंग इन द स्टोरी टाइम. यस. सो डियर पेरेंट्स इसका आपको वीडियो भी मिलेगा कि आप बच्चे को स्टोरी दिखा पाए. नाउ इसका लर्निंग आउटकम है क्या? हम आज जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो है पेपर्स एंड ममाज न्यू जॉब. यस. व्हाट इज द टाइम? पेपर्स एंड ममाज न्यू जॉब. बच्चों हम लोग रोज स्कूल में हमेशा पेपर्स की स्टोरी सुनते थे. पेपर इज अ कैरेक्टर. राइट. आपको याद आई ये बुक देखकर? यस आई नो दैट आप सब ने जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लिया होगा. सो इसका लर्निंग आउटकम क्या है? नाउ द चिल्ड्रन विल बी एबल टू attempts to read a few sentences using sight word with assistance. Yes dear parent, our important session is there. So मैं आपको जो ट्यूसडे का सीटी टाइम होगा वहां पर मैं आपको साइड वर्ड्स क्लियर करूंगी. जब तक साइड वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे आप क्लियर नहीं होंगे कि बच्चों को रीडिंग करानी कैसे है. राइट. इमर्जिंग स्टूडेंट प्रोफाइल क्या होगी? इमर्जिंग स्टूडेंट प्रोफाइल इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस. ओके. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Yeah, this is the front page of our story. Peppers and Mama's new job. Okay. Now, this is the story जो आपको यहाँ से देखनी है, सुननी है, and इसके बाद इसका वीडियो भी देखना है हमें. Yes, Peppers, today is my first day at work. I will leave you at the Little Angels Daycare Center after school. हमने क्या बोला पेपर से कि पेपर आज मेरे जॉब का फर्स्ट डे है. सो आई विल लीव यू एट द लिटिल एंजल्स डे केयर सेंटर. मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल के बाद कहाँ ड्रॉप कर दूंगी? हाँ, लिटिल एंजल डे केयर सेंटर में. डे केयर सेंटर क्या होते हैं? जहाँ बच्चों की केयर की जाती है. एज यू ऑल नो दैट कि हमारा किड्स भी डे केयर सेंटर है. यहाँ पर भी स्कूल के बाद अगर बच्चे जिनके मम्मा पापा वर्किंग होते हैं उनको यहीं रखा जाता है इवनिंग तक, जब तक उनके मम्मी पापा लेने नहीं आ जाते. यस. सो पेपर की मम्मा ने क्या बोला कि आज मेरा फर्स्ट डे है जॉब का. सो मैं तुम्हें स्कूल के बाद कहाँ ड्रॉप करूंगी? डे केयर सेंटर में. नो, आई वोंट गो. मैं नहीं जाना चाहता. आई डोंट वांट टू गो मम्मा, मुझे नहीं जाना. यस. किसने बोला? पेपर ने. ओके. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. पेपर, I can't leave you alone at home. You will like it there. Okay. मम्मा ने क्या बोला? पेपर, मैं तुम्हें घर पे अकेले नहीं ड्रॉप कर सकती, मैं नहीं छोड़ सकती अकेले. Alone means अकेला. You will like it there. Yes, तुम्हें वहां पर अच्छा लगेगा. No, why do you have to go to work? नहीं, मुझे नहीं जाना. Why do you have to go to work?
आप अपने काम पर क्यों जाना चाहती हो? Yes. So next slide. You go to school, don't you? And I go to work. Mama like to work too. जैसे तुम्हें अपने स्कूल जाना होता है, क्या तुम नहीं जाओगे? इसी तरीके से मुझे भी अपना काम करना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है काम करके। इस तरह से उसकी मम्मा ने उसको समझाया, पैम्पर किया। राइट। सो व्हाट्सएप, उसके फ्रेंड ने पूछा क्या हुआ? सो उसने बताया ममा हैज अ न्यू जॉब, मेरी मम्मा को न्यू जॉब मिला है। सो आई हैव टू गो दिस लिटिल एंजल्स डे केयर सेंटर आफ्टर स्कूल। सो मुझे स्कूल के बाद, वो सैड होके बता रहा है अपने फ्रेंड को, सैड कैसे होते हैं, सो वो सैड होके बता रहा है कि मुझे अब स्कूल के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, टेक केयर सेंटर में। सो उसके फ्रेंड ने उसको कैसे डील किया? वाओ दैट्स ग्रेट। हाँ, पेपर ने कैसे एक्सप्रेशन दिया? हाँ, इसमें क्या ग्रेट है? यस। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। आई गो टू देयर, मैं भी वहां जाऊंगी। उसने पूछा वाई, क्यों, आप क्यों जाओगी? मम्मा वर्क्स इन अ बैंक, शी पिक्स मी अप फ्रॉम देयर आफ्टर वर्क। मेरी मम्मा बैंक में काम करती हैं और वो मुझे वहां से पिक कर लेती जब उनका काम पूरा हो जाता है। ओके, सो पेपर ने क्या पूछा उससे? यू लाइक इट देयर, क्या तुम्हें वहां अच्छा लगता है? ओ यस, हाँ बिल्कुल। उसके फ्रेंड ने क्या आंसर दिया? ओ यस, इट्स ग्रेट फन, वहां पर बहुत मजा आता है। आई विल मीट यू देयर आफ्टर स्कूल, मैं तुम्हें वहां जरूर मिलूंगी स्कूल के बाद। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। हूँ ये या वो जैसे ही अंदर जाता है, वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और अपनी मस्ती कर रहे होते हैं। राइट, कोई या बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है। नाउ नेक्स्ट पेज। सो कम ऑन पेपर, मीट माय फ्रेंड स्टीव। उसकी फ्रेंड बोलती है पेपर आओ, मैं तुम्हें अपने न्यू फ्रेंड से मिलाती हूँ जिसका नाम क्या है? स्टीव। हाय पेपर। उसने पेपर को कैसे ग्रीट किया? हाय। पेपर ने क्या बोला? हाय, कम एंड प्ले विथ अस, आओ हमारे साथ खेलो। स्टीव ने उसको कहा माय डैड्स अ डॉक्टर, मेरे पापा क्या हैं? डॉक्टर हैं। माय पापा इज अ पायलट। सेकंड वन ने क्या बोला? मेरे पापा पायलट हैं। ओके, यस। डज योर मम्मा वर्क टू, क्या तुम्हारी मम्मा भी काम करती हैं? पेपर ने पूछा। सो स्टीव ने क्या बोला? यस, शी इज अ टीचर इन आवर स्कूल। यस, वो टीचर है हमारे स्कूल में। ओके, Pepper's mother is an architect. वाओ, पेपर्स की मम्मा क्या है? आर्किटेक्ट हैं। सो उसने कैसे ग्रीट किया उसको कि वाओ दैट्स वेरी ग्रेट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब पेपर की मम्मा उसको लेने आई हैं। हाउ वाज योर डे? पेपर ग्रेट। पेपर ने क्या बोला? बहुत अच्छा। जीव, स्टीव एंड आई, Jan, Steve, and I played computer games and we recite our cars. And Mama, उसने अपनी मम्मा को क्या बोला? मम्मा, I will go with Jean to Little Angels tomorrow. You can pick me up after school. उसने अपनी मम्मा को बोला कि डोंट वरी मम्मा, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अब मुझे आप स्कूल के बाद वहां से पिक कर सकते हो। आफ्टर योर वर्क, स्कूल के बाद भी नहीं, आपका जब पूरा वर्क हो जाए तब आप मुझे वहां से रिसीव कर सकते हो। सो उसकी मम्मा ने क्या बोला? ओके डियर। वो बहुत खुश हो गई कि उनका बच्चा बहुत हैप्पी है। हाय पेपर, हाय आई एम पेपर, माय मम्मा इज एन आर्किटेक्ट। उसने कैसे अभी वो अपनी मम्मा को वैसे बोल रहा था कि काम पे जाने की क्या नीड है, बात उसने समझा कि उस हर काम की इम्पोर्टेंस होती है। मम्मा जो काम करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो उसने बताया, अब वो प्राउड फील कर रहा है सबको बताने की मेरी मदर क्या है? आर्किटेक्ट हैं। हाय आई एम फ्रेड। अब जो न्यू वन आया उसको वो डील कर रहा है। अब जो डे केयर में जो नया मेंबर आया है, अब वो उसको भी वो डर रहा है, वो फ्रेड कर रहा है। बट सामने वाले ने, पेपर ने क्या उसको कॉन्फिडेंस दिया कि डोंट वरी, माय मम्मा इज आल्सो आर्किटेक्ट। ओके, सो व्हाई डू यू प्ले with when your mama and papa go to work? Yes. So this is the last page. Ask your question to your parent. This question, this simple question. Why do you play
with when your mama and papa go to work. Yes. और ये सारी स्टोरी आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगी, right? Hope you all are clear with your work and what do we have to be done by you and your child. Thank you so much, dear parent and my dear kiddos. Will you see in the next class? Stay home, stay safe, brush your teeth twice in a day, wash your hands again and again so many times with the soap and rub it properly. Love you all. Meet you soon. Bye bye.